Good morning, students. This is trained teacher Surjit Pal from Narelwadi Hindi School number 2. Students, you all know I'm your maths teacher. So today also I'm going to teach you the same subject, maths. And what we are going to learn today in maths, that I'm going to show you on the screen. So I'm starting my screen sharing. So everybody look on the screen so that nobody misses anything. Okay. So you can see a slide on your screen. This is the PPT I have made for you. So I'm going to start this PPT. Yes, students, you can see this page on your screen. What is this? This is your mathematics textbook, the cover page of your mathematics textbook. So what are we going to learn today? So I'm going to show you. This is the chapter that we are going to learn today. This is chapter number 8, multiples and factors. So students, what we are going to learn in this chapter, that I'm going to tell you first. First of all, we'll see what are factors, because the name of the chapter is multiples and factors. So we will see what are factors. So second, what we'll see, what are multiples. So what are factors and what are multiples? That means हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि factors क्या होते हैं और multiples क्या होते हैं. इनका मीनिंग हम आज इस चैप्टर में, इस लेसन में सीखने जा रहे हैं. तो चलो शुरू करते हैं फिर. सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 46 पे, जहां पर ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, वहां पे ऊपर की तरफ एक कॉन्वर्सेशन दिया गया है. सो ये जो कॉन्वर्सेशन है, इस कॉन्वर्सेशन में क्या बातें हो रही है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर सुनाने वाला हूँ. तो सभी लोग इसको जरा ध्यान से देखेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड दिस. यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन में हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दादा, संजू, अंजू, मंजू, सागर एंड बहुत सारे लोग हैं. तो ये क्या कर रहे हैं? दे आर डिस्कसिंग, दे आर कॉन्वर्सेटिंग अमंग देमसेल्व्स. सो लेट अस रीड दिस कॉन्वर्सेशन. सबसे पहले दादा सेज, आई हैव 12 पेड़ास. I have to put them in equal groups so that no peda is left over. How many pedas must I put in each group? Sanju says, putting into groups means dividing. None left over means that the remainder will be 0. Anju says, 12 is divisible by 2. So we can make groups of 2. Manju says, 12 is divisible by 3. So we can make groups of 3. Sagar says, we can also make groups of 4. Then Anita says, can we make groups of 5? She's asking. So Manju answers, no, because 12 is not divisible by 5. Then Anju says, we can divide 12 by 6. So groups of 6 can be made. Manju says, we cannot make groups of 7, 8, 9, 10 or 11 because we cannot divide 12 by any of these numbers. Sanju says, we could make one group of 12 and give it to one person, or we could give 12 people one peda each. Now Dada says, very good. 12 is exactly divisible by 1, 2, 3, 4, 6 and 12, which means the remainder is 0. These numbers are called divisors or factors of 12. Similarly, 1, 2, 4, 8 and 16 are factors of 16. So that ends our conversation here. Students, I read this conversation for you all. It is in English. I hope you all understood it. If you understood it, then very good. And if not, then let me explain you everything that they were discussing. What were they discussing? That we will see in the next slide. They were discussing about pedas, right? Here we can see pedas. How many pedas are there? There are total 12 pedas. So they were discussing about pedas and what they wanted to do with these 12 pedas.
So that I'm going to explain you. They were discussing that we have to put these pedas in equal groups so that no peda is left over. No peda is left over means there should be zero remainder. All the pedas, 12 pedas should be equally divided into groups and no peda should be left over. So they discussed many things there. So I'm going to explain you each one by one. So first, how they divided 12 pedas in equal groups, we will see from the start. First, we will see whether we can divide 12 pedas in groups of 1. Students, what do you think? Can we divide 12 pedas into groups of 1? Yes. See how it happens. If we divide 12 pedas in groups of 1, so in all we are going to get 12 groups. And in each these groups, we can see there is one peda. This means 12 is divisible by 1. So we can say that 1 is a factor of 12. Okay, students, here you can see 12 pedas can be divided into 12 equal parts, 12 equal groups, and in each group there is one peda. So every person will get one peda each. So here we say 1 is a factor of 12. Why? Because 12 is divisible by 1. Now, what number comes after 1? 2. So we are going to see whether we can do the same thing with 2. Here we will see whether we can divide 12 pedas into groups of 2. What do you think, students? Is it possible? Yes. So what will happen if we divide 12 pedas into groups of 12? This is what we will get. We will get total 6 groups. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here there are total 6 groups and in each group we can see 2 pedas. So what we saw here, we saw that we can all divide 12 by 2 also. Therefore, we can say that 12 is divisible by 2. And when we say that 12 is divisible by 2, then that means 2 is a factor of 12. So बच्चों, मैंने आपको जो समझाया उसका मतलब ये है, पहले हमने 12 पेड़ाज को एक एक पेड़ा करके टोटल 12 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो हमने देखा कि वहां पे टोटल 12 ग्रुप्स हुए। और जैसे हम आपको दिखा देते हैं स्लाइड, यहाँ पे हमने 12 पेड़ास को 12 ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो हर एक ग्रुप में एक पेड़ा हमको मिल रहा है। सो इसका मतलब है कि हम 12 जो है नंबर 12 एक से डिविजिबल है। और जब हम यह कहते हैं कि 12 इज डिविजिबल बाय 1, तो इसका मतलब होता है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ 12, मतलब 1 जो है 12 का एक फैक्टर है। सेम वे हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि 12 पेड़ास को अगर हम 2 के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हमको टोटल 6 ग्रुप्स मिलते हैं और हर एक ग्रुप में यहाँ पर हमको 2 पेड़ास मिल रहे हैं। और इज देयर एनी लेफ्ट ओवर? क्या कुछ रिमेनिंग है? नहीं, there is no remaining. That means remainder is 0. So here also हम कहते हैं कि 12 is divisible by 2. और जब हमें कहते हैं कि 12 is divisible by 2, then इसका मीनिंग होता है कि 2 is a factor of 12, यानी 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। तो यहाँ पर हमको दो फैक्टर मिल चुके हैं, पहला 1 और दूसरा 2। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड को मूव करेंगे और देखेंगे कि 2 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 3। सो हम अभी देखने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं कि क्या 3 भी 12 का फैक्टर है, हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? We will check whether 12 is divisible by 3. So अगर हम 12 पेड़ास को 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करें तो क्या यह पूरा का पूरा डिवाइड होगा? Let us see. Yes, here हमने 12 पेड़ास को 3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया तो हमको 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप्स, टोटल 4 ग्रुप्स मिले। हर एक ग्रुप में we can see there are 3 पेड़ास
And is there any remainder? क्या कोई remainder है? No. All the 12 pedas have been equally divided into 4 groups. That means हम कह सकते हैं कि 12 is divisible by 3. और इसलिए हम कहते हैं कि 3 is also a factor of 12. 3 भी 12 का एक factor है. ओके स्टूडेंट्स, तो 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया. हमने ये तीनों फैक्टर्स 12 के देख लिए. क्या अब हम चेक करेंगे कि whether 4 is also a factor of 12. Let us see divisibility of 12 by 4. अगर हम 12 पेड़ास को 4 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पे इस तरह से मिलता है. क्या मिलता है? 3 ग्रुप्स मिलते हैं. And in each group we can see there are 4 pedas. This means 12 भी 4 से 12 जो है 4 से भी divisible है. So 12 is divisible by 4. Therefore, we can say that 4 is a factor of 12. 4 भी 12 का एक फैक्टर है, बिकॉज हम 12 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं. और जब हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 ग्रुप्स मिलते हैं पेड़ास के, और हर एक ग्रुप में हमें यहाँ पे 4 पेड़ास दिखाई दे रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, हम अब चेक करेंगे. हमको 4 फैक्टर्स मिल गए, 1 2 3 एंड 4. अब व्हाट कम्स आफ्टर 4? कौन सा नंबर आता है 4 के बाद में? 5. सो हम चेक करेंगे, हम देखेंगे वेदर नेक्स्ट नंबर 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 12 और नॉट. स्टूडेंट्स, अगर हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, वेदर जब हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या हम 12 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें करना क्या होता है? हम 5 का टेबल रीड करते हैं. तो 5 का टेबल अगर रीड करें और उसमें अगर हमको 12 मिलता है तो इसका मतलब है कि वह 12 जो है 5 से डिविजिबल होगा. जैसे हमने 1 का किया तो 1 का टेबल अगर 12 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा. 2 का टेबल हम जब पढ़ते हैं तो 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ते हैं तो 2 6 या 12 मिलता है. 3 का टेबल जब पढ़ते हैं तो 3 का टेबल हम जब 4 टाइम्स रीड करते हैं, काउंट करते हैं, तो 3 4 जा 12 होता है. उसी तरह हमने 4 का देखा. 4 का टेबल अगर रीड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. 4 के टेबल में भी 3 आता है, तो हम कहते हैं कि 12 भी हाँ 12 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है. सेम वे हमें अब फाइंड आउट करना है वेदर 5 is a factor of 12. That means हमें चेक करना है whether 5 जो है 12 को डिवाइड कर सकता है, इक्वली डिवाइड कर सकता है क्या. अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या मिलता है? 12 मिलता है? नहीं मिलता है. सो अगर हम 12 पेड़ास को 5 के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये देखो, हमें 2 ग्रुप मिला. 5 का एक ग्रुप मिला यहाँ पर और 5 का सेकेंड ग्रुप मिला यहाँ पे. 5 5 10 हो गया और हमको यहाँ पे 2 पेड़ास आर लेफ्ट. ये 2 पेड़े जो है बच गए. इनको हम 5 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं. सो ये 2 रिमाइंडर हो गए. और हमने कहा था हमें जब डिवाइड करना है, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि हमको उस नंबर से जब 12 पेड़ास को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए. बट यहाँ पे रिमाइंडर इज नॉट 0. Here remainder is 2. 2 pedas are the remainders. This means 5 is not, 12 is not divisible by 5. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 is not divisible by 5. So that means 5 is not a factor of 12. So 5 जो है 12 का फैक्टर नहीं है, because 5 के टेबल में there is no 12. So what about 5? 5 is not a factor of 12. So students, अब हम देखेंगे. चलो ठीक है, 5 is not a factor of 12. Is there any other number which can be called a factor of 12? तो हम जब देखेंगे तो हमें दिखेगा. Just a moment, somebody, I'm getting disturbed by someone. Okay, there is no one. So next number after 5 is 6. So हम अब चेक करेंगे whether 12 is divisible by 6. So जब बच्चों हम अगर 12 पेड़ाज को 6 के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे. क्या मिला हमको? 2 ग्रुप्स मिला पेड़ाज का. फर्स्ट ग्रुप में there are total 6 pedas. In the second group also there are 6 pedas. That means 12 is divisible by 6. So हम कह सकते हैं
कि 6 is also a factor of 12, क्योंकि हम अगर 6 का टेबल रीड करते हैं तो हमको 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 मिलता है. That means 12 is divisible by 6 and therefore 6 is also a factor of 12. तो बच्चों हमने यहाँ पे up to 6 देख लिया. कितने फैक्टर्स हमको मिले? सबसे पहले 1, then 2 is also a factor, 3 is also a factor of 12, 4 is also a factor of 12. We saw that 5 is not a factor of 12 because 5 के टेबल में we don't get 12. So 5 is not a factor of 12. So now we are saying 6 is also a factor of 12 because 6 1 ja 6 and 6 2 ja 12. So let us check whether next numbers जो है 7 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं. तो स्टूडेंट्स अगर अब हम यहाँ पे 7, 8, 9, 10 एंड 11 इफ जो 5 नंबर्स है इनको देखेंगे कि क्या ये नंबर से 12 डिविजिबल है. तो स्टूडेंट अगर आप 7 का टेबल रीड करोगे तो 7 1 जा 7 होता है और 7 2 जा 12 मिलता है. सो सॉरी 7 2 जा 14 मिलता है. दैट मीन्स 12 जो है 7 के टेबल में नहीं मिलता. उसी तरह से अगर हम 8 का टेबल रीड करेंगे तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16 होता है. अगेन 14 is missing. That means 14 जो है 8 के टेबल में भी नहीं आता. That means 12 is not divisible by 8. Therefore 8 is also not a factor of 12. And उसके बाद next number है 9. 9 का टेबल अगर रीड करोगे तो 9 1 जा 9 मिलेगा and 9 2 जा 18. Again we can't see 12, so we can say that 12 is not divisible by 9. About 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20. There is no 12 in the table of 10. Then 11 का भी टेबल अगर आप रीड करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. Is there 12 in this? No. Therefore, we can say that 12 is not divisible by 7, 8, 9, 10 and 11. ऐसा क्यों? Because अगर हम ये नंबर्स के टेबल्स को अगर रीड करेंगे so 12 इनके टेबल्स में नहीं आता. Therefore, 12 is not divisible by all these numbers 7, 8, 9, 10 and 11. Therefore, we say that these numbers are not the factors of, oh sorry हम थोड़ा आगे बढ़ गए. हम यहाँ पे बात कर रहे थे 7, 8, 9, 10 and 11 का कि all these numbers are not the factors of 12. So हमने यहाँ पर देख लिया. अब 11 तक हो गया. अब नेक्स्ट नंबर है 12. हमको अब देखना है कि क्या 12 से डिविजिबल है. अगर बच्चों हम 12 पेड़ास को 12 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. क्या मिला हमें? हमें 12 का एक ग्रुप मिला और उस ग्रुप में टोटल कितने पेड़ास हैं? टोटल 12 पेड़ास हैं. सो दैट मीन्स 12 is also divisible by 12. यानी 12 जो है 12 से divisible है. Therefore हम कहते हैं कि 12 is also a factor of 12. Okay students, I hope you all understood this. So हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा 12 के सभी फैक्टर्स के बारे में हमने देखा. क्या देखा हमने? कौन कौन से फैक्टर्स हमको मिले? हमको सबसे पहला फैक्टर मिला 1, then we got 2, 3 is also a factor of 12 as we saw. 4 is also a factor of 12. 4 3s are 12. 6 is also a factor. 6 2s are 12. 7 8 9 10 and 11 we check because 12 इनके टेबल्स में 12 नहीं आता. तो हमने देखा कि ये जो नंबर्स है 7 8 9 10 and 11 ये 12 के फैक्टर्स नहीं है. उसके पहले हमने 5 का भी देखा. 5 is also not a factor of 12. So what is the last number after 6? 12. So this is the last factor of 12. Number 12 is also a factor of 12. So students हम यहाँ पे 12 के सारे फैक्टर्स को देख रहे हैं. I hope फैक्टर्स क्या होते हैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा समझ में आ गया है. I hope you all have understood it completely. So now what I'm going to do, I'm going to go to your problem set 33. Just a moment students, I cannot see on the top because okay, it is problem set number 32. I read it 33, that was a mistake.
So let us see what is there in this problem set. अगर बच्चों आप अपने प्रॉब्लम सेट 32 को अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहां पर लिखा है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी जो नीचे जो नंबर्स, फॉलोइंग नंबर्स मतलब जो आगे नंबर्स दिए गए हैं उनके हमको फैक्टर्स लिखने हैं. राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. So let us see what is the first number that is given there. The first number is 8. So what are we supposed to do? We are supposed to find out all the factors of 8. So how do we begin? We always begin with 1. So can 1 be the factor of 8? Yes, it can, because in the table of 1, if we read, we will get 1 8 8. So we can say that 1 is a factor of 8. So what after 1? After 1 comes 2. So we have to check whether 2 can be a factor of 8. Let us see. Let us read the table of 2. 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8. So we can see that 8 comes in the table of 2. Therefore, we can say that 2 is also a factor of 8. What after 2? The next number is 3. So can 3 be a factor of 8? Let us see whether we can divide 8 by 3. Let us read the table of 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. Is there 8 in the table? No. That means we cannot divide 8 by 3. So therefore we can say that 3 is not a factor of 8. So let us check with the next number. What is the next number? Next number is 4. Let us read the table of 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So we get 8 in the table of 4. That means 4 is also a factor of 8. What after 4? Number 4, after 4 comes 5. Let us read the table of 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10. 8 is not there. That means 5 is not a factor of 8. So what comes after 5? 6. Let us read the table of 6. 6 1s are 6, 6 2s are 12. Again 8 is missing. That means 6 also is not a factor of 8. Then comes 7. 7 1s are 7, 7 2s are 14. Here also there is no 8. That means 7 is also not a factor of 8. So the next number is 8 itself. If we read the table of 8, 8 1s are 8. That means 8 is divisible by 8. Therefore, we can write here that 8 is also a factor of 8. So, is there any other number that can divide 8? No. So, 8 is the biggest number, means the number itself, 8, 8, the same number. So, the 8 itself is the biggest factor of 8. So, here we can see we have found all the 4 factors of 8. Well, what are the factors of 8? First 1, then 2, then 4 and 8 itself. Okay students, so this is how we find out the factors of any given number. Now I will go to the next number. What is the next number? Let's see. Next number is 14. On your book, in your book on page number 47 are there. So here we have to find out the factors, all the factors of 14. So when you are asked to find the factors of any number, what you do, you always start with 1. So can 14 be divided by 1? Yes. 1 is, let me tell you students, 1 is by default the factor of every number. Any number you ask, 1 is a factor of every number. So without even counting, without even going to the table, we can say 1 is a factor for all the numbers. Okay. So what is the first factor of 14? It is number 1. And what about the other factors? After 1 comes 2. So we have to see whether 14 can be divided by 2. So for this, we will read the table of 2 and we will see whether 14 comes in the table of 2. So let us start. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14. Here we have found 14 in the table of 2. That means
2 is a factor of 14. What after 2? After 2 comes 3. So we will check whether we can divide 14 by 3. Let us read the table. Is there 14 in the table of 3? No, students, you will not find 14 in the table of 3. So that means 3 cannot be a factor of 14. After 3 comes 4. Here, one by one, we will have to check with every number and we'll have to see whether 14 is divisible by those numbers. After 3 comes 4. And if you read the table of 4, there also you will not get 14. That means 4 is also not a factor of 14. And then we'll check with 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15. Here also there is no 14. That means y is also not a factor of 14. What about 6? 6 ones are 6, so 6 twos are 12, 6 threes are 18. Again, there is no 14. So 6 can also not be a factor of 14. What next? Next comes 7. Now let us read the table of 7. 7 ones are 7, 7 twos are 14. Here we get 14 in the table of 7. Here 7 twos are 14. That means we can divide 14 by 7. That means 7 is a factor of 14. Students, about the next numbers 8, 9, 10, 11, 12 and 13. If you read the tables of all those numbers, you will not find 14 in the tables of these numbers. Therefore, numbers 8, 9, 10, 11, 12 and 13 are not the factors of 14. So what is the next factor of 14 after 7? It is number 14 itself. Because when you read the table of 14, you will get 14 ones are 14. So here are all the four factors of 14. 1, 2, 7 and 14. There is no other number which can divide 14 in equal groups. Therefore, only these four numbers are the factors of 14. Okay, students, now we'll move to the next one. The next is number 7. Here we have to find out all the factors of number 7. So we will again start with 1. 1 is a factor for all the numbers as I have already told you. So we'll write 1 as a factor. And what about all the other numbers? After 1 comes 2. If you read the table of 2, there is no 7 in the table of 2. That means 2 is not a factor of 7. अगेन अगर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे उसमें भी 7 नहीं मिलेगा. 4 का टेबल पढ़ोगे उसमें भी 7 नहीं आता है. 5 का टेबल रीड करोगे उसमें भी 7 नहीं आएगा. 6 का टेबल रीड करोगे उसमें भी 7 नहीं आएगा. हाँ, तो नेक्स्ट नंबर कम 7. 7 के टेबल में 7 आता है. यस, 7 1 जा 7. दैट मीन्स 7 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले आपको एग्जांपल में बताया था. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 7 का नेक्स्ट फैक्टर आफ्टर 1 इज नंबर 7 itself. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने 7 के कितने फैक्टर्स देखे? सिर्फ 2 फैक्टर्स. कौन कौन से? पहला 1 है, दूसरा द नंबर इटसेल्फ 7. ऊपर के नंबर्स में अब हम जरा देखते हैं ध्यान से बच्चों कि 8 का फैक्टर्स में सबसे पहला 1 है. 14 के फैक्टर्स में भी 1 है, 7 के फैक्टर्स में भी 1 है. तो मैंने आपको बताया, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि 1 इज अ फैक्टर फॉर ऑल द नंबर्स. सो 1 के बारे में आपको अगर किसी भी नंबर का कोई फैक्टर पूछेगा तो सबसे पहले 1 तो आंख बंद करके आपको बोल सकते हैं कि 1 इज अ फैक्टर फॉर ऑल द नंबर्स, क्योंकि हम हर एक नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं. और उसके बाद में किसी भी नंबर का एक फिक्स जो आपको बता देता हूं कि सेकंड फैक्टर क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ. यहाँ पर देखेंगे 8 का जो लास्ट फैक्टर दिख रहा है वो खुद 8 ही है. तो नंबर 8 itself is a factor of 8. Here also 14 is itself a factor of 14. In the last 7 also we can see that 7 is also a factor of 7. So किसी भी नंबर का बाय डिफॉल्ट 2 यहाँ पर हम देख रहे हैं. पहला तो 1 is a factor for all. एंड द लास्ट जो फैक्टर्स हम सब में देख रहे हैं वह है वो सेम टू सेम वही नंबर बाय डिफॉल्ट सेम नंबर. सो 8 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ 8. 14 is always a factor of 14 and 7 is always a factor of 7. So यहाँ पर हमने प्रॉब्लम सेट 32 के 3 नंबर्स के हमने फैक्टर सबको फाइंड आउट करके दिया है. वहाँ पे और भी बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स.
तो आपको करना क्या है, वो आपका होमवर्क है कि आपको वो सारे नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हमने अभी वहां पर जो देखा, ये सब हमने देखा था क्या, फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, हम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्या सीखने जा रहे हैं, हमने जो बताया था आपको स्टार्टिंग में कि आज हम फैक्टर्स सीखेंगे, साथ में मल्टीपल्स सीखेंगे। अब मल्टीपल्स सीखने के लिए हम यहाँ पे आपके पेज पे फिर से आएंगे, आपके टेक्स्ट बुक पर आप देखोगे वहां पे सेम पेज पे, पेज नंबर 46 पे नीचे की तरफ कुछ वहां पे एक और कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है। अब इस कॉन्वर्सेशन को मैं आपको फिर से रीड करके दिखाने वाला हूँ और उसके बाद में मैं उसका क्या मीनिंग होता है, उस कॉन्वर्सेशन का क्या मीनिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट मी फर्स्ट सेट दिस। ओके, every student can see this, I hope. पाल सर अनम्यूट अनम्यूट कीजिए पाल सर। Okay, thank you very much। फिर से गड़बड़ पाल हुआ सर। वो ऊपर। यस सर, कैन यू हियर मी? हेलो, आवाज Yes, आ yes, रही है? yes. Yes. You can ओके, start now. थैंक यू, थोड़ा फायदा हुआ, गलतियों से सबक सीखते हैं हम। मैंने आपको अनम्यूट रखा था, वो अच्छा हुआ, नहीं तो ये एक्चुअली ऊपर लेने के चक्कर में फिर से जो है मेरा म्यूट हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, as I told you on your page number 46 of your textbook, you can see this conversation on towards the down side of your page. यहाँ पे क्या लिखा है, I'm going to read you and everybody look at the screen. Just a moment, there's some kind of disturbance. Once again unmute yourself. Yes, okay. Yes. Okay students, let me read this for you. Multiples. Here also you can see there are few names written on the left side of the page. We can see here Dada, Anju, Dada, Anju, Dada, Suraj. So they are discussing something. So what are they discussing? That I'm going to read for you. Everybody look at your screen. Dada says, you know what a divisor and a dividend is. Do you know what a multiple is? Anju says, I don't know what a multiple is, but I think it must be related to multiplication. Dada says, right. Let me give you an example. You can solve 20 divided by 5, can't you? Anju says, yes. When we divide the dividend 20 by the divisor 5, the quotient is 4 and the remainder is 0. Dada says, when the division of a dividend leaves no remainder, the dividend is said to be a multiple of the divisor. In such a case, the dividend is the product of the divisor and the quotient. Here, 20 is a multiple of 5, but 21 is not. Now tell me, can we divide 84 chalk sticks into groups of 6? Suraj says, let me divide by 6. 84 can be divided exactly by 6 and the quotient is 14. Thus, we can make 14 groups of 6. So, 84 is the multiple of 6 and 6 is a factor of 84. Okay, students? I hope you all understood what they are discussing. If you understood it, then fine. If you not, then don't worry. I'm going to explain you. See what they were discussing here. They were discussing about dividing 20 by 5. So how we do this, we'll see in this slide. This is about multiples. We are going to understand what multiples are.
So in the conversation, in the discussion, they were discussing about dividing 20 by 5. Students, I've already taught you the division, in which I have explained you how we divide any given number. So to divide any given number, like here the number 20 is to be divided by 5, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये सिंबल बनाते हैं डिवाइड करने के लिए, और इस सिंबल में हमको जो डिविडेंड होता है वो हमेशा अंदर के साइड में लिखते हैं, बिकॉज 20 इज टू बी डिवाइडेड, तो 20 इज द डिविडेंड एंड 5 इज द डिवाइजर. डिविडेंड को हम अंदर लिखते हैं और डिवाइजर को हम 5 को आउटसाइड में लिखते हैं. अब उसके बाद में डिवाइड करने का प्रोसीजर हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, तो चलो हम यहाँ पे फिर से एक बार कर देते हैं. तो अगर हमको 20 को 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं? हम 5 का टेबल रीड करते हैं. तो 5 का टेबल जब हम रीड करते हैं तो हमको क्या किस तरह से होता है? देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. तो अगर हम 5 का टेबल 4 टाइम्स रीड करते हैं, सो व्हाट वी गेट 20. नाउ इसमें हमने यहाँ पे 20 यहाँ पे लिख दिया. अब अगला स्टेप क्या होता है? हमको सब्ट्रैक्ट करना है. 20 माइनस 20 जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? रिमाइंडर 0. सो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? 4 एंड रिमाइंडर इज 0. तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4. यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20. अब हम इसी को थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं. हमने आपको बताया था डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. अगर हम कहते हैं 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 5 क्या था? क्वोशिएंट था. सॉरी, 5 वाज द डिवाइजर एंड 4 वाज द क्वोशिएंट. तो 5 जो डिवाइजर है उसको अगर हम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 into 4 is 20. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? 20 डिवाइडेड बाय 5 is 4 and 5 into 4, 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन we get 20 back. So that means when the division of a dividend, यहाँ पर हम कहते हैं कि when the division of a dividend leaves no remainder, the dividend is said to be a multiple of the divisor. तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे डिविडेंड को हमने डिवाइड किया और यहाँ पे कोई भी हमको यहाँ पे रिमाइंडर नहीं मिला, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि 20 is a multiple of 5 and 5 is a factor of 20. So see what I've written here. Here 20 is the multiple of 5. When we read the table of 5, 5 4s are 20. As you saw here, 5 into 4 is 20. So 5 is a multiple of, 20 is the multiple of 5 and 5 is the factor of 20. So this is what is meant by multiple. 20 is the multiple of 5. Why do we say that? Because if we read the table of 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. 5 के टेबल में 5 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं so we get 20. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 20 is a multiple of 5 and उसका vice versa, उसका अपोजिट हम कह सकते हैं, because हम 20 को 5 से इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पे कि हमारा रिमाइंडर 0 आता है और क्वोशिएंट 4 मिलता है. 20 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 5 is a factor of 20 and उसी का ठीक अपोजिट अभी हमने देखा कि 20 is a multiple of 5. So ये है मल्टीपल एंड फैक्टर का कॉन्सेप्ट. अब हम कुछ और करते हैं. क्या करते हैं यहाँ पे? मल्टीपल्स में हम कुछ और देखते हैं. वहां पे डिस्कस कर रहे थे डिवाइडिंग 84 चॉक स्टिक्स. चॉक स्टिक्स क्या होता है बच्चों? ये देखो यहाँ पे चॉक है, इसका शेप कैसा है? स्टिक के जैसा है, इसलिए इसको हम चॉक स्टिक कहते हैं. तो वहां पे डिस्कस क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे कि कैन 84 चॉक स्टिक्स बी डिवाइडेड इन इक्वल ग्रुप्स. तो वहां पे लास्ट में सूरज ने कहा कि लेट मी ट्राई बाय 6. हम 6 से उसको ट्राई करते हैं 84 को डिवाइड करने से. तो वहां पे उसने 6 से 84 को डिवाइड किया था. चलो देखिए कैसे उसने डिवाइड किया था. सबसे पहले डिवाइड करने के लिए सिंबल के अंदर हमने डिवाइडेड 84 को लिख दिया. अब उसके बाद में हमको किससे डिवाइड करना है? 6 से.
तो 6 से 84 को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 का टेबल पढ़ते हैं। सबसे पहले किस में टेबल पढ़ेंगे 6 का, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज 8, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे कि हमको या तो 8 मिले या फिर 8 से कम रहे, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो दैट मीन्स हमको यहाँ पे 6 का टेबल वन टाइम रीड करेंगे, सो वी विल गेट 6। अब नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 2। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, ऊपर 84 के साथ में जो राइट साइड में 4 है नीचे जाके 24 के साथ में प्लेस कर देंगे। सो हमको अब क्या मिलेगा, नंबर 24। अब हम क्या करेंगे, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 का टेबल हमको पढ़ना है कि हमें क्या मिलना चाहिए, नंबर 24। तो इसे हम कैसे करेंगे बच्चों, तो 6 4 जा, हमको 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 4 जा हम देखते हैं कि 6 4 जा होता है 24। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 84 इज डिविजिबल बाय 6, therefore we can say that 6 is a factor of 84। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टर तो हमने पहले देख लिया था, अब हमको यहाँ पे मल्टीपल देखना है। तो अगर हम 84 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन हमको 14 मिलता है, दैट मीन्स 84 जो है, अगर हम 6 का टेबल 14 टाइम्स पढ़े या फिर 14 का टेबल 6 टाइम्स पढ़े तो हमको 84 मिलता है। सो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है और देखा 84 डिवाइडेड बाय 6 इज 14, और उसी का अपोजिट 6 into 14 is 84, यानी 6 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 84 मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 84 is a multiple of 6 and 6 is the factor of 84। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आप सबको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया। आई होप आप सभी लोगों को मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इसके बाद समझने के बाद में हमने वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सेट 32 के 3 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए थे, तो आपको वो प्रॉब्लम्स के बाकी के जो सम्स है उनको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा आज का यह लेसन कंप्लीट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको इस लेसन के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि हम जो यहाँ पे जो लेसन्स कंडक्ट कर रहे हैं, ये लेसन्स के सभी वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो आप सब लोग उस लिंक को टच करके, क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारे क्लास के सभी वीडियोस आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वहां पर जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको वहां पे कुछ और भी करना है। जब आप हमारे चैनल को जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे चैनल पे आपको जाके सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको चैनल से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको हमेशा एक क्लिक में आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपको वीडियोस को नीचे वहाँ पे थम्स अप का आइकन होता है, उस पर क्लिक करना है, और उसको क्लिक करके आपको वीडियोस को लाइक करना है। और उसके साथ ही साथ वहाँ पे आपको एक बेल का आइकन दिखेगा। वो बेल का आइकन किस लिए होता है बच्चों, वो बेल का आइकन अगर आप क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आगे हमारे जितने भी नए वीडियोस हम वहाँ पर आपको चैनल पर प्लेस करेंगे, वो सारे जैसे ही हम वहाँ पे वीडियोस अपलोड करेंगे वैसे ही आपको आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा नए वीडियोस के बारे में। तो आप उस नोटिफिकेशन को देख के हमारे नए वीडियोस को भी तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु आर हियर विद मी।